Hello children, how are you all? Today we are going for Standard 4, English 1, Chapter 2, Part 4. Okay, and so far what we have done, that we will revise first. Scientists and inventions. We have studied about the famous scientists and their inventions. In the lesson we have studied about Vikram Sarabhai, Dr. Homi Bhabha and Aryabhatta, Sir C.V. Raman, that is Sir Chandrasekhar Venkat Raman. Okay, and what they have invented, that also we have studied in the previous sessions. Okay, then we have done the question answers. Okay, all the question answers we have done. We have done some activities. Okay, then in part 2, famous discoveries and inventions, we have studied about Archimedes. Okay, and one story was written and I have explained you about the story. Okay, and based on the story we have translated, that is we have done the meaning of the previous story. Then we have done some questions, general questions and answers. These are all I have written in the textbook. Okay. Now, after that, in page 15, some hint and some cartoons and hints are given, and we have written the stories in page 15 and 16. Now, what we have to do is activity 7. Okay, what to do, that I will explain you. My hero scientist. आपको क्या करना है? यहाँ पर मैंने तो थोड़ा लिखा है एक साइंटिस्ट के बारे में, लेकिन आपको जो साइंटिस्ट पसंद है उनके बारे में जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको आपके नोटबुक में लिखना है. फर्स्ट यू राइट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड देन यू कॉपी डाउन इन द नोटबुक. ओके, सो वी विल प्रोसीड नाउ. एक्टिविटी 7, माय हीरो साइंटिस्ट. आपका मनपसंद साइंटिस्ट, आपके मन में जो साइंटिस्ट हीरो है उनके बारे में आपको लिखना है. राइट द डिटेल्स ऑफ योर फेवरेट साइंटिस्ट. Discuss the details of the same with your teacher and friends in class. अभी तो friends and teachers तो अभी नहीं होंगे, right? तो घर पे parents होंगे, तो parents के साथ discuss करके, या तो आपके elder brother sister है, उनके साथ discuss करके आप लोग लिख सकते हो. You take the help of the Google, okay, or YouTube or some other website apps, so that you can write down about your favorite scientist. Okay. Now I have written here about APJ Abdul Kalam. I have written about APJ Abdul Kalam. Everybody is familiar with this name. सबको ये नाम पता है, नाम के बारे में पता है. APJ Abdul Kalam. His full name is Abul Pakir Jainullaabdin. ये उनका पूरा नाम है. आपको वैसे ही दूसरे साइंटिस्ट का बारे में जो भी लिखते हो ना, आपको वैसे ही लिखना है. एपीजे अब्दुल कलाम, फुल नेम है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 15, 1931. कहां पर उनका जन्म हुआ था? रामेश्वरम, दैट इज इन तमिलनाडु, इंडिया. दैट इज इन तमिलनाडु, इंडिया. वो तमिल थे. Now, and he died in July 2015 in Shillong. इंडिया में शिलोंग है, वहां पर उनका डेथ हुआ था. अभी उनका काम, उन्होंने क्या क्या इंडिया के लिए किया है उसके बारे में हमको लिखना है. ओके, व्हाट ही हैज डन. इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन रह चुके हैं. वो साइंटिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे. Who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons program. वो हमारे पॉलिटिशियन थे. ओके,
वो बीजेपी में भी थे और उन्होंने अच्छा काम किया था और हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो साइंटिस्ट भी थे। ओके, ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। ओके, तो उन्होंने किस में काम किया था? यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब, रॉकेट लॉन्च व्हीकल, ये सब उन्होंने बनाया था। बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब, रॉकेट लॉन्च व्हीकल, ये उनका इन्वेंशन है। ओके, देन ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2007. He worked for 5 years as a president. Okay, now because of his missile work, he came to be known as Missile Man. वो कैसे पहचाने जाते थे? मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाते। We call him as Missile Man. He also played important role in India's Pokhran second nuclear test in 1998. पोखरण के बारे में पता है, which is in राजस्थान। ओके, वहां पर जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें भी उन्होंने हेल्प किया था। न्यूक्लियर बॉम्ब जो टेस्ट हुआ था 1998 में, उसमें भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उनका क्या क्या, वो लेखक भी थे। ही वॉज अ वेरी गुड राइटर, ही हैज रिटन सो मेनी बुक्स, और उनकी इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो विंग्स ऑफ फायर, वेरी फेमस बुक, देन इग्नाइटेड माइंड्स, देन माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी। ये तीनों बुक उनकी बहुत फेमस हो चुकी है। अंडरस्टूड? विंग्स ऑफ फायर जब आप बड़े होंगे तब आप लाइब्रेरी में से लेके उसको पढ़ सकते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस बुक। बाद में, दो ही वॉज अ मुस्लिम, ही केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ प्रमुख स्वामी जी। प्रमुख स्वामी जी के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी उन्होंने लिखा है एक बुक में। ओके, और उसमें काम करते थे एज एन एरोस्पेस इंजीनियर। ही वर्कड एज एन एरोस्पेस इंजीनियर। अभी इतना आपको लिखना है, राइट? वैसे ही आपको, मैंने तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको लिख के दिखाया है, सेम टू सेम यही लिखोगे तो भी चलेगा। अदरवाइज दूसरे कोई साइंटिस्ट के बारे में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जो साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर लिखते हो ना, उनका फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। पेस्ट द पिक्चर ऑफ द साइंटिस्ट, जिसके बारे में आप यहाँ पर लिखते हो उनका फोटो यहाँ पर चिपकाना है। दैट इज योर वर्क। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। ओके, अभी ये जो एक्टिविटी 8 है ना, वो हम बाद में करेंगे, नॉट नेसेसरी नाउ एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जब स्कूल शुरू होगा तब हम करेंगे। एक्टिविटी 9, फिल इन द ब्लैंक्स। पूरा ग्रामर है, लेकिन सिंपली समझा देती हूं। बाद में जब ग्रामर सेक्शन, ग्रामर क्लास होगा, तब आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ में आएगा। Time being, we are writing the answers. Okay, fill in the blanks. So, I have written the answer for you. Ravi is a boy. Ravi boy है, इसलिए is लिखा है मैंने, you know, सिंगुलर के साथ always is आता है। Now, पूरा सेंटेंस जो है, पूरा जो पैराग्राफ है, वो पास्ट टेंस में है। So, I have used some past tense words and some prepositions. So you can understand properly. Ravi is a boy. He lived with his mother. He lived with his mother. किसके साथ रहता था? मम्मी के साथ, with. One day they decided, past tense, decided past tense हो गया। One day, एक दिन उन्होंने decide किया to go to Delhi. कहाँ पर जाना था? दिल्ली जाने के लिए decide किया था। Ravi was late from school.
Ravi was late from school. Was is used for past tense. Mother told Ravi to get ready. They reached the station and learnt that the train was late. Learnt is used in past tense. That the train was late. जैसे वो स्टेशन पहुंचे तो उनको पता चला कि ट्रेन लेट थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. लिटिल सुनीता हैड 3 फ्रेंड्स. सुनीता जो छोटी सी थी, उनको कितने फ्रेंड्स थे? 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स. All of them were younger to her. As this whole paragraph is in past tense, so we are using were. They went to play cricket on a bright sunny day. वो लोग कहाँ गए थे? क्रिकेट खेलने गए थे सनी डे में. सुनीता वॉज टायर्ड एंड हंग्री. सुनीता बहुत थक गई थी और भूखी भी हो गई थी. द गर्ल्स डिसाइडेड टू गो होम. गर्ल्स ने डिसाइड किया कि हम वापस घर जाते. ओके, सो दिस इज द पैराग्राफ. यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, नाउ वी विल पास ऑन टू एक्टिविटी 10. ये भी होमवर्क ही है, आपको ही करना है अपने आप से. वॉट वुड यू लाइक टू बिकम इन लाइफ? थिंक एंड शेयर योर ड्रीम्स and ambitions with your friends in a group and then write it about in the space provided below. जो स्पेस दिया गया है वहां पर आपको लिखना है. आपको क्या करना है? आपका एम्बिशन, आप क्या बनना चाहते हो when you grow up. Okay, what would you like to become? आपको साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, प्रिंसिपल बनना है, इंजीनियर बनना है, ओके, गुड ह्यूमन बीइंग बनना है. जो भी बनना है वो आपको यहाँ पर लिखना है. एंड आपको क्यों बनना है? वाई यू लाइक दैट एम्बिशन. आपका ड्रीम क्या है? फर्स्ट यू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स. यहाँ पर तो फ्रेंड्स नहीं होंगे घर पे, तो यू डिस्कस योर पेरेंट्स एंड एल्डर ब्रदर और सिस्टर. देन यू कैन राइट डाउन हियर इन द स्पेस गिवन. ओके, and you can write at least 10 or 12 lines, not more than 10 or 12 lines. उससे कम भी लिख सकते हो, लेकिन 10 lines are enough. Okay, so here we are completing our lesson number 2. Okay, I hope you will all write this in the notebook and in the textbook also, and read the lesson properly once again and go through it. Okay, and thank you very much. Take care.